Hello everyone, welcome back to our channel Success Edutech, and don't forget like, share and subscribe to our channel and share with your friends, those who are needy persons. Now before going, आज सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या पोर्शंस पढ़े इस चैप्टर में देखेंगे। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 3, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कवर किया है सीक्वेंसेस, फाइंड अ n टर्म ऑफ एन एपी एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वी हैव कवर दिस 3 टॉपिक्स। हमने क्या कवर किया? ये 3 टॉपिक्स कवर किए। नाउ रिमेनिंग 2 टॉपिक्स we will see in the next 2 lectures. Now in today's lecture we are learning what is meant by arithmetic progression. I have already explained what is the meaning of this graph and why I am showing this graph in this PPT. So this is a simple meaning of arithmetic progression. कैसे grow होता है arithmetic progression और कैसे निकाला जाता है. So this is a simple one graph to understand what is meant by arithmetic progression. Now let's see. In previous lecture we have learned these topics, that is sequences, practice set 3.1 and n term of an AP and problems on this. Now we are seeing some more problems on this n term of an AP and some more problems which looks quite difficult, but it is very easiest one problems to solve. Now let's see. In previous class we have covered n term of an AP. This is a generalized formula for n term of an AP. We have already told an is nothing but a last term, a1 is nothing but the first term, n is nothing but a number of terms in a sequence, d is nothing but a common difference. We have already told in my lecture 2 what is the meaning and where it is useful in this formula. Based on this, we are solving some more problems in today's session. Now today's session is generally based on practice set number 3.2 and problems from this. So we are learning some problems from this practice set 3.2. Now let's start our session without wasting too much time. Now let's see the first problem from the practice set. Now let's check. Read the problem carefully firstly. Decide whether the following sequence is an AP. If is so, find the 20 term of an progression. अगर ये AP में है तो आपको कितने नंबर की टर्म निकालनी है? 20वें नंबर की टर्म निकालनी है। सबसे पहले करना क्या है? आपको तो ये चेक करना है सीक्वेंस में है या नहीं है और AP में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले D निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले T1 T2 असाइन करूँगा। T1 इक्वल टू -12, T2 इक्वल टू -5, T3 इक्वल टू 2। सो मुझे मैं 3 से निकाल सकता हूँ D। सो मैं मेरा D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? T2 -T1 इक्वल टू -5, माइनस माइनस प्लस होता है तो 12, सो वी गेट 7। तो T3 -T2 इक्वल टू वी गेट अगेन 7। सो मुझे A मिल चुका है और D मिल चुका है। अगर मुझे A और D पता है तो मैं T20 नंबर की टर्म निकाल सकता हूँ। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट T20. नाउ वी ऑलरेडी नो Tn इक्वल टू A प्लस n इन ब्रैकेट n-1 इंटू D. सो ये फॉर्मूला है। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है और n की पता है। कितना है? n का वैल्यू 20 है। तो मैं अगर n की जगह 20 और A की जगह वैल्यूज पुट अप कर दूँ मुझे आसानी से T20 मिल जाएगा। So this is my formula. Now if I put all the values in the given formula, then we get T20 equal to 121. So मेरे 20 नंबर की टर्म क्या रहेगी? 121। ये मेरी T20 नंबर की डैश करके 121 मिलेगा। कितने पोजीशन पे? T20 पोजीशन पे। 20वें पोजीशन में मुझे क्या मिलेगा? 121 मिलेगा। I hope you are clear this problem. Now let's see the next problem. Find the 90th term of an AP. आपको अभी क्या पहले 20वीं निकालना था, अभी 19वीं निकालना है। इसके लिए पहले मैं क्या कर रहा था? Tn. तो Tn के लिए
फॉर्मूला पता है मुझे। सो इस सबसे पहले मैं ए और डी निकाल लेता हूँ इस पर से। ए और डी निकालने के बाद क्या मिला मुझे, ए मिल चुका है 7 और डी मिल चुका है 6। तो मेरा ए का वैल्यू है 7, डी का वैल्यू है 6। तो मैं पहले टी एन का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। टी एन इक्वल टू ए 7 प्लस 6 साथ में से 6 के बचे 1 6 -1। सो टी एन मुझे मिल चुका है। तो मुझे 19 भी निकालनी है, तो मैं एन की जगह 19 डाल दूंगा। तो 6 into 19 -1 we get 113। सो लेट्स सी। सो मैंने पहले क्या किया आपको बताया पहले भी, टी एन की जगह मैंने एन की जगह और ए की जगह वैल्यूज डाल दिए। सो मुझे टी एन इक्वल टू मिल चुका है। टी एन इक्वल टू क्या मिला मुझे 6 -1। सो एन की वैल्यू मुझे 19 भी निकालनी है, तो एन की जगह क्या डालूंगा 19 वैल्यूज डाल दूंगा। तो डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, पुटअप करने के बाद मुझे मिलेगा 19 into 6 -1। इसे और आगे सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलता है टी 19 कितना मिलेगा 113। आई होप यू हैव क्लियर। टी 19 मीन्स 19वीं टर्म क्या मिलेगी 113 ऑफ एन ए पी। सो 113 नंबर की टर्म रहेगी, 113 19वें नंबर की टर्म रहेगी यहाँ पे मेरी। कितना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा क्या क्या काउंट करते जाऊँगा तो मैं 19वें पोजीशन पे मुझे क्या मिलेगा 113। आई होप यू हैव क्लियर द डाउट्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड आउट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से। सो 100 5 से डिविजिबल है। सो लास्ट कहाँ तक रहेगा 999 तक। सो ये 5 डिविजिबल 5 से डिविजिबल नहीं है, इसके पहले का 5 से डिविजिबल क्या रहेगा 995। सो मुझे सीक्वेंस मिल चुका है अभी। सीक्वेंस क्या रहेगा मेरा, लेट्स सी। दीज आर द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 100 105 110 115 अप टू 995। इसके आगे का कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर्स होगा भी नहीं। 999 है बट ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। सो मेरा टी एन मिल चुका है 995, ए इक्वल टू पता है और डी इक्वल टू पता है। और इसे और आगे सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग फार्मूला। मुझे बाय फार्मूला जाते हैं, मुझे टी एन पता है, टी एन की वैल्यू डाल दूंगा, ए की वैल्यूज डाल दूंगा और डी का वैल्यूज डाल दूंगा। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट दिस 5n इक्वल टू 999। तो 5n बराबर 890। सो n बराबर 890 डिवाइडेड बाय 5। इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 178। सो 178 178 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से क्या हो गया आपके 5 से क्या हो गए डिविजिबल हो गए, यानी कंप्लीटली डिवाइड होते जाएंगे। ऐसे 178 नंबर्स है जो मेरे 5 से डिविजिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। ट्राई more practice at your home so you will get handy with these problems. Now let's see the next problem from this book, which is most important. Now let's see how to solve this table. Read the carefully. First of all, the 11 terms and the 21st terms of an AP are 16 and 90 respectively. Then find T41 की चौथी सी टर्म निकालनी है आपको ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले मुझे T11 दिया हुआ है, T11 कितना दिया हुआ है 16 और T21 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 29। तो मैं सबसे पहले दोनों को क्या करता हूँ, अपना फॉर्मूला लगाता हूँ जनरलाइज Tn का। तो मुझे क्या मिलेगा T11 लगाने के बाद a + 10b = 16। यहाँ पे a + 20b = 16। मुझे दो इक्वेशन मिल गए, मैंने नाम दिए दो इक्वेशन। मैं दोनों का क्या करूँगा सब्ट्रैक्शन। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 सो मुझे क्या मिलेगा d = 1.3 मिल जाएगा। अभी d मिल
see how to solve this. First of all मैं T11 के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ. So T11 लगाने के बाद मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिला है. T21 को लगाने के बाद इक्वेशन नंबर 2. Solving equation 1 and 2 we get D equal to 1.3 and A equal to 3. So मैं A फॉर्मूला अभी T41 के लिए लगाता हूँ. So मैं T41 लगाने के बाद मुझे क्या मिलता है? So T41 लगाने के बाद A plus n in bracket n minus 1 into D. So A और D की वैल्यूज मिल चुकी है और n की पता है 41 निकालना है. सिंपली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. T41 equal to 55. इससे मुझे T41 इक्वल टू कितना मिला? 55. सो मेरे T41 की वैल्यूज क्या रहेगी? 55. आई होप यू हैव क्लियर दिस डाउट्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स. नाउ लेट्स सी सम मोर. थैंक यू फॉर वाचिंग. Success Edutech. Don't forget like, share and subscribe to our channel.